Good evening, all of you. And today I'm here to present a small discussion in front of you related to this year's notification, and as well as different kind of misinformation are there in the market. And my purpose here is to demystify different kind of the fake news going on regarding UPSC and all these things, and not just fake news, also the ambiguities. So this is today's lecture is about notification about UPSC notification 2021. So let's quickly move to the topic. So civil service examination 2021. Here are the vacancies. You can see the trend of vacancies. Okay, to 2013, 14 when Congress government was there. If तो थोड़ी vacancy ज़्यादा थी after more of a liberal market oriented government came. So the vacancies are reducing. तो पहले आप देख सकते हो कि these were the number of vacancies, and slowly it has got reduced to 2021 796. This year it is 712 for this civil services examination, and 110, it is not 10, it is 110 for forest services examination. ठीक है. This civil service examination shall comprise of 19 services including 4 group B services. ठीक है. इसमें मैंने ब्रेकअप नहीं किया कि आईएएस के लिए कितनी, आईपीएस के लिए कितनी है. वो यू कैन सर्च इट बाय योरसेल्फ कि हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर फॉर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईएफओ और अदर IRS and other allied services. You can do your research work by yourself. ठीक है. तो टोटल 822 वैकेंसीज है, वेयर 712 will be for civil services, and forest services के लिए it is 110. So as you can see that number of vacancies for forest services is remains generally consistent. ठीक है, 100, 110, 90 ऐसा ही. इसमें vary करता है. ठीक है. Why? Because there are different type of services which are getting added, some are getting removed. There are different kind of positions getting opened, some kind of at some position, some private individual are also getting deputed, some lateral entry format, all these things are coming. That's why the number of vacancies in for civil services remain in flux and keeps on varying. ठीक है. अब रही बात एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी है कि भाई इफ यू आर ग्रेजुएट. ठीक है. एंड इसमें ये भी है कि ग्रेजुएट हो और या तो उसी साल एग्जाम में बैठने वाले हो, या थर्ड ईयर 3 साल का कोर्स हो तो फाइनल ईयर में हो, या 4 साल का कोर्स है देन ऑल्सो यू आर इन द इफ यू आर इन द फोर्थ ईयर, इफ यू आर अपेयरिंग दैट ईयर देन स्टिल यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम. एज फॉर जनरल इज 21 to 32 years, or there is no age relaxation for economically weaker section, but there is a uh, age relaxation for scheduled caste and scheduled tribe, that is 5 years. मतलब कि 37 साल तक इफ SC ST कैटेगरी के हैं तो 37 years till 37 years you can give this paper, and if you belong to OBC then age relaxation is given for is provided 3 years. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एज रिलैक्सेशन एंड अटेम्प्ट्स. तो अटेम्प्ट्स ये है कि जनरल है तो 6 अटेम्प्ट्स आर देयर. ठीक है. ओबीसी है तो 9 अटेम्प्ट्स. SC ST के लिए देयर आर practically unlimited attempts. Physically and physically divyang, for divyang people it is a maximum 10 years depending upon varying degrees of disability or special ability you can call it. ठीक है. तो ये चलेंगे. कोशिश इतने दूर तक ना जाना पड़े, ये कोशिश होनी चाहिए. ठीक है. ट्राई टू क्लियर दिस एग्जाम कम से मैक्सिमम इन 2 or 3 अटेम्प्ट्स. ठीक है. उसके बाद इट विल होगा ना कि बस ऐसे ही है, ऐसा लगेगा कि रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं और आप चलाते जा रहे हैं. इट विल बिकम अ रूटीन वर्क. 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं देने का है, 3 अटेम्प्ट्स के अंदर खत्म करने का. देयर शुड बी अ वेरी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए. नहीं भी होता है तो 3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं करने के लिए. 3 अटेम्प्ट देना, पूरी इधर जाके
जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं टाइप की फिलॉसफी नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। डू मोर जस्टिस विथ योर लाइफ एंड इट इज बहुत ज़्यादा इधर परेशान होने की और 8-8 9-9 अटेम्प्ट देकर एग्जाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स माय पर्सनल सजेशन बीइंग योर सीनियर इन दिस फील्ड, ठीक है। फिर लेट्स कम टू नोटिफिकेशन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन इज 4 तारीख को ये नोटिफिकेशन आई थी एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन इज 24 मार्च 2021। 6 बजे तक, 6 बजे शाम तक ये आप सबमिट कर देना, ठीक है। अगर 24 तारीख दी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि टिल आप ना एकदम लास्ट के मिडनाइट तक एकदम 11:55 पर आप फॉर्म भर रहे हैं। दैट इज नॉट अलाउड। ओनली टिल 6 PM, ठीक है, इन द इवनिंग, 6 PM इन द इवनिंग यू आर अलाउड टू फिल योर एप्लीकेशन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो विड्रॉ योर एप्लीकेशन till 6 PM on 6th of अप्रैल, ठीक है। 6 अप्रैल तक आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में यू कैन विड्रॉ योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन विड्रॉ करने का मतलब देखो एज सच कुछ प्रैक्टिकल यूज नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, अगर आपने फॉर्म भरा एंड यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स पेपर, देन ऑल्सो योर अटेम्प्ट विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा जब तक आप प्रीलिम्स के पेपर में नहीं बैठ रहे। फॉर्म विड्रॉ करने का मतलब ये है कि यूपीएससी they have to make allocation, allocate seats and everything. They have to spend public money from the public exchequers. तो अगर नहीं देने का मन है तो विड्रॉ कर लेना। जनरली लोग करते नहीं है बिकॉज इवन इफ वी सी लास्ट ईयर almost like 10.5 lakh people filled this application and only 5 or 5.25 or 5.4 lakh people appeared for prelims paper, ठीक है। फिर भी अगर करना चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 27th of June एंड मेंस ऑन 17th September, ठीक है। एंड फिलिंग योर एप्लीकेशन, यू कैन फिल योर एप्लीकेशन ऑन दिस वेबसाइट notupsc.gov.in, ठीक है। यहाँ इधर रिजल्ट आता है, ठीक है। ये खोलेगा ऐसे पेट में, देयर विल बी सम बटरफ्लाई इन योर स्टमक, क्योंकि रिजल्ट इधर आता है। तो जब भी खोलेगा बैड मेमोरी लेन्स में जाएगा। तो इधर नहीं खोलना है, हैप्पी हैप्पी मोड से इधर खोलना है, ठीक है। इधर खोलोगे देयर विल बी लिस्ट ऑफ फॉर्म्स फॉर एनडीए, सीडीएस और ऑल अदर एग्जाम्स व्हिच यूपीएससी कंडक्टिंग, दे मे आल्सो अपीयर देयर, बट जनरली यूपीएससी में सिविल सर्विसेज का दिखता है। यू कैन फिल योर फॉर्म। सेम फॉर्म विल बी आल्सो, इट विल बी रिटन सिविल सर्विसेज एज वेल एज आईएफएस। फॉर्म सेम होगा, हाँ। फिर सपोज इफ यू कमिट एनी मिस्टेक, suppose if you commit any mistake after while filling the form and you just submitted the application, so you can update your mistake by submitting another form, ठीक है। अपनी गलती को सुधारने के लिए आप दूसरा एप्लीकेशन भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाम वाम माँ बाप का वो सब सेम रखिए, जस्ट फिल अनदर एप्लीकेशन, वहां पर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यू फिल्ड दिल्ली रखना है, फिर लेकिन 2-4 दिन बाद याद आए, ठीक है। 24 तारीख से पहले, मतलब फॉर्म फिल अप जो लास्ट डेट है उससे पहले, इफ यू थॉट ऑफ यू चेंज योर प्लान एंड यू थॉट कि नहीं भाई घर से ही इस बार दूंगा मैं अटेम्प्ट, सो आई शुड फिल, आई शुड गिव सम वेन्यू विच इज more near to my place of native place. So in that case also you can change just by filling another application. एक और फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट लेटेस्ट फॉर्म विल बी कंसिडर्ड, कहने का मतलब ये है। एंड दैट लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन आईडी विल बी कंसिडर्ड, वहीं पर आपको फॉर्म भरना है, उसी से आगे जाना है। फिर सेंटर्स विल बी अलोकेटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। व्हाई आई ऑलवेज आस्क टू फिल एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा सेंटर मिलता है, ठीक है। फॉर्म टाइम से नहीं भरेगा कुछ भी दिखेगा,
कहीं पे they will throw you out in any kind of some government school or some kind of building which will be in dilapidated condition, which will be in ruin. It may happen. Generally, such type of things uh, may not be as frequent with UPSC, but state PCS के एग्जाम्स के साथ तो ज्यादा ही होता है, पर UPSC के साथ भी हो सकता है. अगर if that building may not be good, why building and all these infrastructures are important? Because that will be very hot. Like June, it will be very hot, so you need some kind of good cooling. Some ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उधर से धूप आ रही है खिड़की से, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, and you are in uh, worst worst of your situation, and you are there is a pressure of giving exam. स्पेशली सी सेट के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि पता चला कि इफ दैट सेंटर इज वेरी लोकेटेड इन वेरी रिमोट एरिया, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ फर्स्ट पेपर, जीएस पेपर देने के बाद यू कम आउट ऑफ योर स्कूल, देयर इज नो प्लेस टू ईट और देयर इज नो प्लेस टू सिट इवन. ठीक है, और इतनी गर्मी होती है माइंड यू कि इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू सस्टेन. ठीक है, इफ इट इज नॉट अ शेडी एरिया, कुछ शेड नहीं है, कुछ भी ऐसा खाने पीने या रेस्टोरेंट कोई ऐसा नहीं है जहां पे आप बैठ के, बिकॉज 3 आवर ब्रेक होता है. ठीक है, 11:30 बजे पेपर खत्म होगा, 2:30 बजे फिर शुरू होगा, तो 3.5 घंटे 3 घंटे का गैप होता है. डेट इज ह्यूज. ठीक है, उसमें नींद आना और थकान होना और ऑल दीज थिंग्स हैपन. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवाइस कि फिल योर फॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट यू विल बी allocated a venue which will be in a better setting. ठीक है, चाहे वेंटिलेशन हो, कूलिंग हो, लाइटिंग हो, टाइप ऑफ बेंच एंड ऑल दीज थिंग्स यू आर गेटिंग, और आउटसाइड एनवायरनमेंट ऑल्सो. दीज थिंग्स, देखो दिस एग्जाम इज सो टफ, यू कैन नॉट टेक एनी चांस. कहने का मतलब ये है, अगर किसी चीज पे काम कर सकते हैं तो करने में क्या बुराई है. ठीक है, तो यू शुडंट बी टेकिंग एनी चांस. एवरीथिंग मैटर्स, everything matter, and your overall composure, it is important. When I was giving paper, UPSC only, so while in mains exam, no, it was not mains, it was CSAT. Yes, it was CSAT paper, and while giving that paper, and it was too hot. It was too hot, and I was like sweating like hell, and few drops from my forehead, it it fell on that OMR sheet also. Then it again created some kind of disharmony in my mind, and such things should not happen. If it is avoidable, try to avoid it just by simply filling your form on time. ठीक है, लास्ट टाइम तक का वेट नहीं करना है. ठीक है, सो these documents, yeah, one more important thing, the documents related to your reservation or your economic status, if you are OBC, SC, ST, or EWS, all these application you have to submit only when you have cleared prelims. जब डैफ भरना होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, मेंस के टाइम पे you have to fill all the you have to provide all these category certificates as well as your mark sheet and all these things. जितने भी whatever documents are needed, like your mark sheet, your 10th class, your A certificate, like your mark sheet, your category, schedule caste, schedule tribe, or economically weaker section, or OBC, all these certificates will be required only when you will be clearing prelims and you will be appearing for mains. ठीक है, तो मेंस में अपियर करने से पहले देयर इज अ फॉर्म यू हैव टू फिल, दैट इज कॉल्ड DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए लेट्स टॉक अबाउट द सर्टिफिकेट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ सम सर्टिफिकेट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी. तो ओबीसी कैंडिडेट applying for this exam must produce OBC non-creamy layer. There is a different category. OBC में भी creamy layer और non-creamy layer का है. 8 लाख से अगर less income है तो you can be considered annual income. You can be considered as a creamy layer, non-creamy layer. अगर उससे ज़्यादा है then you are creamy layer. This OBC reservation applies only to non-creamy OBCs. क्रीमी ओबीसीज को नहीं मिलेगा. उसमें और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं. देयर आर मोर क्राइटेरियाज, लाइक इफ यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, देन दिस
this OBC reservation will not apply, all these things are there, तो उसको डिटेल में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इनकम जो एनुअल रखी है वो 8 लाख रखी है, पर उसमें भी कुछ और थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। तो and for proving that you are non creamy layer of OBC, you got to have the income certificate for past 3 years of your family. 19, 20, 18, 19 और 17 पिछले 3 साल के इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। फिर a candidate who is trying to get reservation of EWS reservation has to submit income certificate of previous year only. OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल का, पिछले 3 सालों का चाहिए, एंड फॉर दिस EWS only 1 year. Previous year's economic this certificate, income and asset certificate will be required, ठीक है। And one more thing, these certificate should dated earlier than the due date of the application of civil services. Very important, most important thing. If you are willing to fill form for EWS, then your certificate should be issued before civil services application. ठीक है। Closing date of civil services preliminary examination 2021. ठीक है। यानी कि 24 तारीख थी, 24 तारीख से पहले पहले आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट थिंक कि ठीक है अभी प्रीलिम्स देते हैं फिर उसके बाद अगर निकलेगा देन आई विल गो फॉर टू गेट दिस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आपको पहले ही करना है, अभी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले ही यू हैव टू मैनेज दैट सर्टिफिकेट, दैट डेट ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी, ठीक है, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ दिस फॉर्म डेट, ठीक है। तो फॉर्म डेट के बंद होने से पहले ही आपको सर्टिफिकेट यू गॉट टू गेट इट इशूड विथ योर नेम। एंड जनरली जो आपके नेटिव जगह का जो डेप्यूटी कलेक्टर होगा और सम काइंड ऑफ मैजिस्टीरियल पर्सन, ही विल बी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट दिस EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो करवा लेना, जस्ट आस्क योर फादर और योर फैमिली मेंबर, एनी पेरेंट, योर गार्जियन, एंड जस्ट इंक्वायर कि हु इज रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, हु इज ऑथोराइज्ड टू ग्रांट यू दिस EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो कर देगा। एंड देयर इज नो चेंज ऑफ कैटेगरी वंस यू हैव सबमिटेड द फॉर्म। एक बार फॉर्म भर दिया तो भर दिया, उसके बाद कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है अभी अभी दूसरा कैटेगरी देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, आई नेवर थॉट ऑफ कि भाई ओबीसी में भरूं या ईडब्ल्यूएस में भरूं, ईडब्ल्यूएस में भर दिया तो फिर उधर नहीं जा सकते। मतलब कहने का मतलब यू कांट चेंज योर कैटेगरी वंस यू हैव फिल्ड द फॉर्म, ठीक है। फिर these are few criterias who are the person who are excluded from economically weaker section, जिसकी इनकम जो है 8 लाख से ऊपर है एनुअल इनकम। फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख। 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और उससे ज्यादा की अगर जमीन है, आपके मम्मी पापा और भाई है, मतलब आपके एकदम जो क्लोज वाला फैमिली, ऐसा नहीं एक्सटेंडेड नहीं है, ऐसे ग्रैंड पेरेंट का नहीं कि चाचा ताऊ का मिला के नहीं, जस्ट योर बाप के आपके मम्मी पापा का मिला के अगर 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, देन यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। रेजिडेंशियल फ्लैट का भी है, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का अगर रेजिडेंशियल फ्लैट है, इफ यू हैव रेजिडेंशियल फ्लैट मोर देन 200 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में है, नहीं सॉरी 100 स्क्वायर यार्ड अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में है, या 200 स्क्वायर फीट स्क्वायर यार्ड्स इन नॉट नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, देन यू कैन नॉट अपीयर फॉर ईडब्ल्यूएस। तो ये याद रखेंगे। फिर दैट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, that income certificate as well as asset certificate you have to produce. Asset क्या है और income क्या है, you have to produce. प्रोड्यूस कब करना है, जब मेंस के लिए फॉर्म भरेंगे,
बट ये सर्टिफिकेट कब तक बनवा लेना है? अभी ये जो लास्ट अभी फॉर्म भरोगे, लास्ट डेट से पहले पहले ये सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर फी है भाई, अगर जनरल से हैं या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपए का फॉर्म लगेगा। ठीक है, अगर महिला है, SC ST और पर्सन विथ some kind of disability or special ability, then they don't have to fill this, give this money. ठीक है, prelims का the details, 2 papers are there, 200 marks each. ठीक है, 100 questions come in GS paper 1 and 80 questions for CSAT paper. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स की। ठीक है, फिर 2 शिफ्ट में होगा, विथ 2 आवर्स पेपर होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, फिर 2 घंटे का होगा, बीच में 3 घंटे का देयर विल बी अ गैप। ठीक है, दैट गैप, सेम गैप आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज अ ह्यूज गैप, डोंट अंडर एस्टिमेट इट, इट समटाइम्स टेक टोल। ठीक है, इतनी गर्मी होती है, इट इज टू हॉट इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड तो समटाइम्स वी फील वेरी लेथार्जिक एंड फिर सीसैट पेपर होता है एंड देयर इज आल्सो मेंटालिटी कि वी डोंट हैव टू crack, we just have to pass through this eligibility number like 66 point 67 मान लेते हैं, 67 marks we have to just cross that line, we don't have to top in this paper, all these things are there। तो फिर ना वो देयर इज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, कॉम्प्लिसिट एटीट्यूड हो जाता है, सम काइंड ऑफ लैकडाइसिकल एटीट्यूड क्रीप्स इन, समटाइम्स इट मे प्रूव टू बी फेटल। ठीक है, कई बार खतरनाक हो जाता है कि उतने नंबर भी 66.66 67 मार्क्स भी नहीं आते, तो इसको हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, फिर दिस इज द डिटेल्स ऑफ प्रीलिम्स पेपर, दिस इज द सिलेबस। ठीक है, इन सीसैट जनरली हम क्या करते हैं, दिस न्यूमरेसी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वी टेंड टू ओवरलुक इट, वी थिंक दैट कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, वी विल फोकस ऑन comprehensions, will focus on some kind of aptitude or mental testing, like वो बेटा उसका उसका भाई भाई तो उसके बीच में क्या रिश्ता, such type of questions हम कर लेंगे and we will we will be able to clear the eligibility। ठीक है, तो वो कई बार ना sometimes it may backfire also, because comprehensions are subjective in nature, it may happen that you solve 20 questions from comprehensions but you end up marking only 5 to 7 questions right and remaining are wrong, and if you add a negative marking it comes down to 0। तो ये नहीं करना है, there should be some focus on these quant वाले question, quant wale questions are important because they are more objective in nature, if it is right then it is right, you can focus on few low hanging fruits like simple interest, some kind of ratio proportion, time and distance, such type of easier version of quant you can definitely solve, you may leave uh, probability, permutation, combination questions, such type of questions you can leave, but these questions you got to solve it। ठीक है, then only your prospect of passing that barrier of 67 marks will be assured, otherwise it will be always under doubtful situation कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर अभी तक के प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, तो ये अभी रहने देते हैं, लेट्स नॉट फोकस ऑन 13 एंड 14 बिकॉज सीसैट वाज दैट टाइम स्कोरिंग, वी कैन फोकस ऑन दीज 15 16 17 18 19। ठीक है, अभी क्या है, 107 मार्क्स, 116, 105, अभी 2016 में क्या हुआ, 116 कट ऑफ चली गई, यूपीएससी ने इसको अपने ईगो पे ले लिया, फिर यू कैन सी 105, 98, 98, इस साल और गिरेगा। ठीक है, गिर सकता है, तो 107 फॉर दिस सिविल सर्विसेज, 121.34 फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज, same 133, 116 for civil services, 133 for forest services,
See, forest services are very nice option for those who are from engineering background or they have science subject in for their graduation. ठीक है, तो उस पे फोकस करना है. The only trick is to clear this prelims. प्रीलिम्स का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है, पर अगर क्लियर कर लिया ना तो देर देर आर हाई चांसेस that you can secure a very good all India services job. That is very nice job. My childhood friend's father was a forest service officer, and I have seen the perks and the chillness, the calmness of the job. ठीक है, you are in located in some good uh, serene environment with your farmhouse situated in this at the center of some kind of big forest or national park, and you will live a lavish and chill life as well. कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, कोई नेता वेता फोन नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. You have to, if you are a wildlife, if you are a nature lover, then that is a very nice job to do. ठीक है, तो सही है. आई हैव सीन की सही रहता है. लाइक माय फ्रेंड वाज हैविंग अ गुड लाइफ, एंड पेरेंट्स भी दे वर आल्सो क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी नहीं होते हैं, 2-2 3-3 साल जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी 2 साल तो रहोगे ही रहोगे. ऐसा नहीं है कि लाइक यू आर आईपीएस और आईएएस की हर 3 महीने 6 महीने पे यू आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. तो सही रहता है. यू कैन गो फॉर दिस फॉरेस्ट सर्विसेज पेपर ऑल्सो. ठीक है, फिर लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज. तो you can appear for forest service examination if you have graduated from engineering degree, if you have this engineering degree, any branch, civil service, computer science, IT, any branch. Bachelor degree from all these subjects, science subjects like animal husbandry, botany, zoology, physics, chemistry, mathematics, geo, agriculture, forestry. There are 14 optionals. ठीक है, and few combinations are not allowed. ठीक है, उसमें कुछ combination allowed नहीं है, जैसे जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ऐसे कुछ कुछ है. केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री, ऐसे कुछ कुछ जो कॉम्बिनेशन है. इसमें 2 ऑप्शनल होते हैं, हाँ, ये याद रखेंगे. सिविल सर्विसेज जैसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शनल होंगे फॉर मेंस. दैट यू शुड रिमेम्बर. ठीक है, 2 ऑप्शन होंगे, बट फ्यू कॉम्बिनेशंस आर नॉट अलाउड. यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट एंड यू विल गेट टू नो कि विच 2 ऑप्शंस आर नॉट अलाउड. ठीक है, फिर दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम. 300 marks general English, 300 marks for general knowledge, and these are the 2 options, 200 marks each. ठीक है, तो 800 marks is for your optional, and remaining 600 marks for your general English and general knowledge. Question general knowledge के पूछे जाते हैं, सही होते हैं. And this personality test is of 300 marks. ठीक है, तो 300 marks का रहेगा for this. Civil services के लिए it is 275 marks, but here it is of 300 marks. Total 1700 marks का this paper will be. ठीक है, तो if you are trying to give this attempt, so you can also focus on forest services. ठीक है, and one more thing, few new students are there who somehow want to give uh, this attempt. They are not prepared for this attempt, but they want to give this attempt just for the sake of giving it, and they think that if they will give this year's paper, then there will be some kind of sense of urgency. Otherwise ऐसा लगेगा कि 1.5 साल बाद पेपर देना है, 1 साल बाद देना है. तो for those I would recommend, I would suggest, instead of giving civil services paper, you can give forest services paper only. तो उससे एक फायदा ये होगा कि your attempt will not be counted and you can give this prelims, क्योंकि पेपर तो सेम होता है. And suppose if you are able to comprehend these optionals also in this time, ठीक है, अभी ऑप्शनल पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाद में नहीं होगा, अभी टाइम होता है. यू कैन फोकस ऑन दीज ऑप्शनल्स आल्सो ऑफ रिलेटेड टू फॉरेस्ट सर्विसेज. कुछ ऑप्शनल जो है यूपीएससी में नहीं होते लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज में होते हैं. यू कैन, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, सच ऑप्शंस आर देयर. इट वोंट टेक मच, इट वोंट टेक वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ऐसा यूपीएससी जैसा नहीं है कि साल भर पढ़ के ऑप्शनल तैयार हो रहा है. आसान होता है. फॉरेस्ट्री ये हो गया, एनिमल हस्बेंड्री इजी टॉपिक्स हैं. You can, हो सकता है इंटरनेट पे there may be some series of 15 to 20 lectures which will complete entire optional. So you can watch, you can subscribe to those lectures also. You can watch, you can get some book and you will be easily you can comprehend these options. बहुत ज़्यादा pressure, बहुत ज़्यादा time नहीं लगेगा.
ठीक है, तो इसको कर लेना, आईएफएस का भी सही होता है। तो सिविल सर्विसेज हो गया, आईएफएस हो गया, डेट और ये सब का ध्यान रखना, टाइम से भर देना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।